Good evening, friends. In this lockdown period, we are welcoming you all. It's our privilege to have a Maharajji session today on relationship management. We all finance professionals are expert in the field of finance management, balance sheet management, and many others. But today we have to manage relationship. We all are in home from last around 60 days or even more. So in this, we have to manage our relationship with our family members, with our relatives, and even more with our clients. So Maharaji will cover each and everything. Before we start, it's our privilege to have a joint session with our uh, alma mater, Jain Chartered Accountant Federation, Jain Advocate Federation, Jain Doctors Federation. Before we start, we would like to request President Jain Chartered Accountant Federation, CA Pradeep Kapadia sir, to address the attendees and inform about the activities of JCAF. Over to you, Pradeep sir. It gives me immense pleasure in welcoming you all on behalf of Jain Chartered Accountant Federation, Jain Doctors Federation, and Jain Advocate Federation to this mega event, an exclusive 1.5 hour of the workshop on relationship of floral bouquet. And today we are fortunate to have with us Vice Admiral DSP Vermaji, an initiator and was in the management of India's first nuclear submarine Ariane. And also with us we have our own Jain Chartered Accountant Federation Apex President Santilalji Kochar, immediate past president of WIRC, CA Preeti Savlaji, and regional council member CA Jayesh Kalaji. And we are privileged to have them with us. And I think COVID-19 has proved to be a blessing in disguise, that a fusion of all the three association is happening frequently. Yesterday also we had a workshop, and today we have Sadhika Dr. Pragbaji Virat, a counselor and a behavior psychologist, who will take us through this workshop on different aspects of relationship. And now, without wasting much of the time, yes, I have to speak on JCF activities also. We are doing everything, let me tell you, from seminars, workshops. We have every day, let me tell you, for in this COVID period, we have every day something or the other. And for that, I have to really thank Virag and Abhishek for doing an excellent job and having day in and out we have a workshop. And we are not only limited to that, we have our charity arms also. Let me tell you, in COVID-19 we have distributed PPE kit, we have given masks, we have given scrubs, we have given pillow covers to hospitals and to police station and everywhere. I think we, chartered accountant, Jain Chartered Accountant Federation, with the blessings of Nai Padma Sagar Maharaj Sahib, activities don't stop here. And I think it will just go on and on. So now, not wasting much of the time, yes, over to Dipti Jain, a fresh coordinator, along with Abhishek and Virag, who are doing a wonderful job. Yes, Dipti ji, thank you. Thank you very much. Before Dipti should start, I would like to request Gautam Mehta ji, President Jain Advocate Federation, to have a few words. Gautam ji, over to you. Yeah, Jai Jinendra, good evening. I have immense pleasure in welcoming one and all on behalf of Jain Advocate Federation Mumbai. I especially welcome Adhika Dr. Pragyaji Virat. He is going to deliver today's speech. This is a very important topic which will help everyone in day-to-day life. Thank you all. Jai Jirendra. Thank you so much, sir. Now, would like to request our beloved chairperson, CA Preeti Savla, madam, our immediate past chairperson of WRC, to have a few words to address our attendees. Thank you, Virag bhai. Coordinators, Abhishek bhai, Dipti madam,
JCF President Pradeep Bhai Kapadia, and Apex President कोचर शांतिलाल कोचर जी, और माय कलीग इन द काउंसिल जयेश भाई काला, और महाराज साहब, साधिका जी, प्रभा जी, विराट जी, आपके चरणों में शत शत नमन। और नए पद्म सागर जी को भी हम प्रणाम कर रहे हैं, और साध्वी जी, गुरुवर्या श्री वैभव श्री जी महाराज महाराज साहब को भी हमारा प्रणाम। और ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप अ फ्लावर बुके, सो मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि एक तो सहनशीलता जरूरी है कोई भी रिलेशन निभाने के लिए। अभी जैसे बोला क्वारंटाइन में सब लोग घर पे है, नहीं तो सब लोग इतने बिजी है, इतनी रफ्तार फास्ट है मुंबई में, तो लाइफ इतनी फास्ट है कि किसी को घर पे तो किसी को एक दूसरे को मुंह भी देखने के समय नहीं मिल रहा है। और लेकिन आज की तारीख में जो सिचुएशन आई है और रिलेशनशिप जो है, जो टॉपिक है आज का, बहुत ही सुंदर टॉपिक किया है ये। और उसमें एक सहनशीलता है जो होती है, तो सब रिलेशन महाराज साहब जी ज्यादा इसमें अपने को ध्यान देंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सहनशीलता है वो बहुत जरूरी है कोई भी रिलेशन निभाने के लिए। प्लस मैं एक चीज में और ये करती हूँ कि अनेकांतवाद। घर में अगर 5 लोग हैं तो हर एक का सुझाव अलग अलग होगा कोई एक मैटर पे, लेकिन हर एक सब मिलके अगर नक्की करे कि हमको ये मैटर में क्या करना है, तो हमको कोई भी मनमुटाव नहीं होगा और वो रिलेशनशिप बढ़िया चलते आएगी। तो एक सहनशीलता रखनी चाहिए, और एक अनेकांतवाद का सिद्धांत मैं ऑलवेज फॉलो करती हूँ। ये इसकी वजह से रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे हैं। और मैं JCF का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को आज ये मौका दिया है कि सबके सामने मैं अपना विचार प्रस्तुत करूं और 2 शब्द बोलूं। एज रिगार्ड्स टू CA फ्रेटर्निटी, हमने इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे अभी न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं, और 100 करोड़ स्टूडेंट के लिए हमने 100 करोड़ का फंड अलग से रखा हुआ है कि स्कॉलरशिप, अगर जो स्टूडेंट एकदम अच्छे हैं और लेकिन उनको अगर हम वो पढ़ नहीं सकते हैं या उनको पैसे का प्रॉब्लम है, तो 100 करोड़ का फंड हमने अलग से रखा है कि उनको स्कॉलरशिप दे सके। ऐसे मेंबर्स के लिए भी बहुत 30 करोड़ के फंड रखे हैं कि जो हम उनको फॉर डिजिटल, अगर ये डिजिटल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं और उनको कर सकते हैं। और बहुत सारे मेंबर्स है और महाराज साहब जी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और बस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी इन दिस पीरियड। और अगेन JCF is doing wonderful job. My kudos, my congratulations to them. Thank you very much. Thank you so much, madam. Now I would like to request Jayesh Bhai Kala to address the attendees for 1 minute. Jayesh Bhai Kala. I think due to some technical issue, Jayesh sir is not able to speak. I would like to request Vice Admin DSP Verma sir to address the attendees for 1 minute. Well, I really don't know. Can you hear me? Yes, sir. Yes. Yeah. I really don't know why I'm being asked to address the chartered accountants, because I am very poor at accountancy. But relationships are very important, and I'm sure there's a lot that we can learn from Prabhaji today. I have only one aim or one this thing in my whole career. Don't do unto others what you don't want them to do to you. If that is what you follow, automatically, I believe you'll have good relationships. So that's been my philosophy, and so far things have been good. Thank you. I wish all of you a great workshop, and the gains of this, I'm sure, will be good for the nation. Thank you. Thank you so much, sir. Now, without wasting much time, I would like to request Dipti Jain to brief introduction about the Maharaj Ji. A very good evening to all, and Jai Ho Maharaj Sahib Ji.
इनके बारे में क्या कहे, बस यही कहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साध्वी श्री गुरुवरिया वैभव श्री जी महाराज साहब जी की जय, साधिका जी प्रागवा जी की जय हो। Dr. Sadhika Pragbaji Virat, she is an eloquent speaker and an integral part of Charam Mangal Group, headed by Sadhvi Shri Guruvarya, Vaibhav Shiji Maharaj Sahib Ji, Atma. Dr. Pragbaji is a behavioral and psychologist, talented motivational speaker. She conducts workshops on relationship development, lectures on personality management, stress management, parenting, work-life parenting, managing work-life balance, professional relationship management, and on various subjects for all age groups. She is a doctorate PhD in Hindi literature and master's in journalism and mass communication. She worked as a dean of social sciences and humanities department at Maulana Azad University, Jodhpur. She has worked for 18 long years in active theatre, and winner of 3 national awards for her acting skills. She is an editor of various books, including Charam Mangal Monthly Magazine, for over 12 years. She represents the modern school of Jain philosophy and believes in removing rotten traditions and hammer on superstition. She possesses an amazing ability to change mindset through powerful delivery of innovative content to her audience in a way that drives excellent result in their decision making process, fears, frustration, aggressions, complexes, repercussions, and inner conflicts with an affirmative state of being. She strongly believes in fully living every single moment, every single day. So let's all welcome Sadhika Dr. Pragba ji to grace and enlighten us with her words. नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणम् ऐसो पंचणमुक्कारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। अनंत उपकारी अरहंत वीतराग परमात्मा, बोधि प्रदाता, आत्मज्ञानी, निर्ग्रंथ पूज्य विराट गुरुदेव, प्रत्यक्ष गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। समस्त शत जीवनी काय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। थैंक यू वेरी मच सीए फेडरेशन के सभी सदस्यों को और एडवोकेट फेडरेशन एंड डॉक्टर्स फेडरेशन, एज आई एम बीइंग टोल्ड, इस तरह ऑनलाइन मुलाकात आप सबसे हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है। ये एक इनिशिएटिव है आप सबकी तरफ से। जस्ट अगर देखा जाए तो मैं फिजिकली शायद ही दीप्ति जी को छोड़कर किसी और से मिली हूँ। बहुत धन्यवाद कि दीप्ति जी ने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया और विद इन वन और 2 डेज ये सेशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर। सही कहा विराग भैया ने कि आज तक हम लोग बैलेंस शीट मैनेज करते हैं, कुछ और चीजें मैनेज करते हैं, अकाउंट्स बुक्स मैनेज करते हैं, क्लाइंट्स मैनेज करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं,
पर आज हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज द our title goes for this title is relationship a floral bouquet। देखो, जब हम एक बुके सजाते हैं, ये नाम क्यों दिया गया, तो जब हम एक बुके सजाते हैं, है ना, उस बुके में हर तरह के फूल होते हैं, गुलाब के, रजनीगंधा के, और उन गुलाब के फूलों को उभारने के लिए, उन रजनीगंधा या इट मे बी क्राइसैंथेमम, इट कैन बी क्लॉडियला, एनी फ्लावर, उन सबको उभारने के लिए पीछे कुछ लीव्स दी जाती है जो कम सुंदर होती है, लेकिन वो कम सुंदर लीव्स भी उन फूलों को उभारती है। जब आप उस बुके में रोजेस डालते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, ये ध्यान होता है हम सभी को कि उस बुके में, उस फूल की डंडी में कुछ कांटे हो सकते हैं। तो आप बड़े ध्यान पूर्वक उन सारे कांटों को निकालते हो, उनके सारे एक्स्ट्रा जो ऐसे पत्ते हैं जो आपको उस बुके में नहीं चाहिए, बड़े ध्यान पूर्वक उन्हें हटाते हो, कलर्स को बैलेंस करते हो, साइज को बैलेंस करते हो, एंड इस तरह से वो बुके सजाते हो कि हर एक फूल दिखाई, हर एक फूल दिखाई। और सपोज कुछ ऐसे फूल हैं जो सबसे पहले खिले हैं, तो आप उनकी महक सबसे पहले ले पाओगे। फिर धीरे धीरे जब वो फूल अपनी महक कम हो जाएगी उनकी, फिर वो धीरे धीरे वहां से गलने सड़ने लगेंगे, तब आप उनको निकाल के फेंक देते हो, और फिर पीछे बची दूसरे फूल, अब उनकी सुगंध आएगी, और इस तरह धीरे धीरे ये बुके पूरी तरह से आपके जहन में छाता रहता है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, बड़ी प्यारी बात बोली अभी राजवी जी ने कि सहनशीलता और अनेकांत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और एक बहुत प्यारी बात वाइस एडमिरल साहब ने बोली, जो महावीर वाणी भी यही बात कहती है। वो शायद महावीर वाणी से परिचित ना हो, लेकिन बड़ी सिंपल और बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली कि जो आप अपने लिए चाहते हो वो आप दूसरों को दो, और जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो आप दूसरों के साथ भी मत। ये रिलेशनशिप का बेस है। हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें और आगे, लाइक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोशल आपके जो ऑब्लिगेशंस है उनके साथ, उससे पहले मैं एक बहुत सिंपल बात करूंगी, और ये बात मैं बार बार रिपीट करती हूँ। या आई नो आई रिपीट दिस in about every workshop of mine, wherever I am talking about relationship, or am I or talking about communication, I just repeat this one line. इन सारे मैनेजमेंट से पहले जरूरी है कि आप अपने आप के साथ मैनेज। जैसे आप जब अपने टैक्स भरने जाते हैं या कोई रिटर्न्स भरने जाते हैं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि आपकी अपनी बैलेंस शीट, आपके अपने जो पेपर्स है वो कंप्लीट है या नहीं। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो जब आप वहां पहुंचेंगे और पेपर वर्क अपने फाइल करेंगे, वहां आपको दिक्कतें आ सकती। यानी अगर अंदर का मैनेजमेंट सही है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे कॉमर्स के और आपके सीए के ये टेक्निकल शब्द नहीं आते हैं, तो अगर मैं कोई शब्द इधर उधर कहीं गलत भी इस्तेमाल कर लूं तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि अगर आपके कैश बुक मेंटेन्ड है, अगर आपके लेजर्स मेंटेन्ड है, दे आर वेरी फाइनली, बहुत अच्छी तरह से आपने उसको मेंटेन किया हुआ है, तो आपकी बैलेंस शीट वुड बी परफेक्ट। उसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं होगी। उसी तरह से अगर आप अपने अंदर मैनेज्ड हो, आपके इमोशंस मैनेज्ड है, आपका एटीट्यूड मैनेज्ड है, आपके शब्द मैनेज्ड है, आपके अंदर चलने वाले थॉट्स मैनेज्ड है, तो व्हाटएवर यू विल एक्सप्रेस आउटसाइड, दैट वुड श्योरली बी मैनेज्ड। इसे मैं नाम देती हूँ अक्सर, और ये हमारे कम्युनिकेशन की बुक्स में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट, and that is intrapersonal management, intrapersonal relationship।
आपका खुद के साथ रिलेशन कैसा है। आप देखो ये क्वारंटाइन पीरियड है ना, इस पीरियड में आप लोग 24 घंटे घर में, वो घर आप जब काम कर रहे थे तब पूरी पूरी रात काम कर रहे थे। आई नो सम सीए प्रोफेशनल्स, आई सपोज लगभग सभी सीए प्रोफेशनल्स की ये हालात होते हैं जब उनके ये मार्च क्लोजिंग चल रहा होता है या वो रिटर्न्स भरने होते हैं। आई डोंट नो द डेट्स, बट उस समय किसी को भी पूछो, दे आर वर्किंग होल नाइट। कई बार घर पे भी आ रहे हैं तो 12-1 बजे पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं, एंड दे से कि वी डोंट हैव टाइम। और किसके लिए कर रहे हो इतनी मगजमारी? अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, अपने घर बनाने के लिए कर रहा हूँ। और जिसके लिए इतनी सारी मगजमारी की, आज इस क्वारंटाइन पीरियड में आपको उन लोगों के साथ रहने को मिल रहा है जिस घर को आपने इतनी तकलीफों के, इतनी मुश्किलों से बनाया, आज उस घर में आपको रहने को मिल रहा है। वाओ, बट इट वॉजंट अ वाओ। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर आप पक गए, परेशान हो गए। वो घर जिसकी एक एक कोने को सजाने के लिए आपने अपनी नींदें, आपने अपने मूड का सत्यानाश किया, आपने न जाने क्या क्या कॉस्ट पे की, अपने हेल्थ की कॉस्ट पे की, अपने रिलेशंस की कॉस्ट पे की। आज जब वो आपके पास है, आप पूरी तरह से उसको एंजॉय कर सकते हो। यू आर नॉट एंजॉइंग इट, यू आर नॉट एंजॉइंग इट। वो परिवारजन जिसके साथ आप रहने के लिए तरसते थे, यू समटाइम्स आई मीट पीपल हु आर वेरी डिप्रेस्ड, ये महाराज साहब हम अपने घर वालों को वक्त नहीं दे पा रहे। समटाइम्स दे आर डिप्रेस्ड कि हम खुद को वक्त नहीं दे पा रहे। अभी आपके पास वक्त ही वक्त था, दे पाए आप? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर खुद को मिलने से, खुद को आमने सामने देखने से मैं डर लगता, हम बोर हो जाते हैं खुद के साथ। हम अपने आप के साथ, अपने आप के साथ का मतलब विदाउट मोबाइल ना, डोंट अंडरस्टैंड कि भाई मुझे एक मोबाइल दे दो, कमरे में बंद कर दो, मैं 10 दिन कुछ मांगूंगा ही नहीं। नहीं, नो मोबाइल। आप सिर्फ अपने आप के साथ कितनी देर रह सकते हो? हाईएस्ट मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हम खुद को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि अरे थोड़ी देर पहले तो मुझे ये चाहिए था, अब मुझे ये चाहिए, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं ये था या मैं ये था? अभी मैं थोड़ी देर पहले तो इस पर्सन को बहुत पसंद कर रहा था, लेकिन अभी कोई ऐसी बात मेरे सामने आ गई, अब मेरा नजरिया चेंज हो गया। तो मैं क्या हूं? मैं ये हूं कि मैं वो हूं? इस जो भी आपका कंपेनियन है, इसके साथ रहने को मैं तरसता था। आज ये मेरे सामने है, मेरे साथ है 24 घंटे। मैं सिर्फ 24 घंटे बैठकर इनको निहार सकता हूँ, लेकिन क्या मैं निहारता हूँ? नहीं। क्यों? मुझे अब शिकायतें आने लग गई। तो मैं कौन हूं? मैं जो वो प्यार करता था वो हूं, या मैं जो शिकायतें करता था वो? हम अपने आप के साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं, और हमें खुद से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हम सबसे पहले तो खुद के लिए एक फ्रेमवर्क सेट करें। और वो फ्रेमवर्क कैसे होता है पता है? ये जैसे ये फ्रेम है ना, इसके ऊपर आप टैग्स लगाते जाते हो। अ गुड हस्बैंड, a good father, a good son, a good friend, a good neighbor, a good society person. सारे बहुत सारे आपने टैग्स लगा दिए, और एनी टाइम यू आर स्ट्रगलिंग टू फिट इन ईच टैग। नॉट ओनली टू बी फिट इन ईच टैग, एवरी मोमेंट यू आर स्ट्रगलिंग दैट वेदर यू हैव अटेन दैट लिमिट और नॉट। और ये जो गुड है ना, ये गुड हस्बैंड, ये गुड सन, अ गुड फादर, ये गुड की डेफिनेशन कौन डिसाइड करता? क्योंकि गुड का कोई क्राइटेरिया ही नहीं। हो सकता है एक बच्चा जिसको आप सारा डिसीजन खुद ही लेने देते हो, वो कहे कि माय फादर इज अ गुड फादर, ही गिव्स मी स्पेस। और सेम अगर दूसरा फादर अपने बच्चे को उतना ही इंडिपेंडेंस दे, तो वो दूसरा बच्चा कहेगा कैसे फादर है, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। उस गुड का क्राइटेरिया क्या? इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
तो सबसे पहले तो इन सारे लेबल्स, इन सारे टैग्स से परे अपने आप के साथ मुलाकात कीजिए एंड beware, yes, beware. You are not a perfect person and nobody can be. अगर हम परफेक्ट होते तो सिद्धबुद्ध मुक्त नहीं हो गए होते. We all are a bundle of imperfections and that is why we are a part of this world. लेकिन परेशानी ये है कि बजाय अपने इम्परफेक्शन के साथ एक एक्सेप्टेंस मोड पर आने के, व्हाट वी आर डूइंग इज अपनी उस इम्परफेक्शन को छुपाने के हम इतने रास्ते तलाशते हैं और उन इम्परफेक्शंस को बाहर भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमारा टोटल फोकस हमारे इम्परफेक्शंस पर. मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ऐसा नहीं बन सका, मैं वैसा नहीं बन सका. अभी जैसे कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते थे और सीए बन गए. अब ऐसे मुझे कई लोग मिले जो 25 साल हो गए सीए है बट दे नेवर वांटेड टू बी अ सीए, राइट? सो मैं तो महाराज जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सका. क्यों भाई? मैं तो आर्मी में जाना चाहता था पर क्या है, मेरे घर वालों को पसंद नहीं था. उनको तो बस बेटा आंखों के सामने चाहिए. तो क्या, कुछ नहीं, जिंदगी काट रहे हैं, सीए बन गए. अरे सीए बनना इतना आसान था क्या? जो मिला नहीं उसे तो अभी तक अपने मन मंदिर में बिठाकर रोज उसकी पूजा आरती कर रहे हो. और जो आपको मिला है वो आपका पोटेंशियल, वो आपकी एबिलिटीज जो फ्लरिश हुई है, जो ब्लॉसम हुई है, उसके प्रति आप थैंकफुल ही नहीं हो. सो आज के इस सेशन का पहला चीज, अपने आप के साथ वक्त गुजारें. यस, मार्क अ मी टाइम, अ मी टाइम विद योरसेल्फ. उस मी टाइम में कोई और नहीं. हो सकता है सुबह सुबह जब आप नींद से जागे तो एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठे और 20 मिनट खाली बैठे ही रहें. हो सकता है बिना चाय के भी बैठे, विदाउट एनी न्यूज़पेपर्स, विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी मोबाइल, नथिंग. अच्छा, आपको अपने आप से कुछ पूछना भी नहीं है, आपको कुछ चैंट भी नहीं करना है, आपको कोई इधर उधर की कोई खूबसूरती देखकर कोई कविता की 4 लाइनें याद करनी है, ऐसा भी नहीं है. यू जस्ट हैव टू बी विद योरसेल्फ. और जरा बात करो अपने आप से. और साहब, क्या हालचाल है, कैसे हो, मजे से कट रही है, आर यू एंजॉयिंग? ओके. अच्छा, तो क्या है जो अभी खटक रहा है तुमको? अच्छा, इतना ही खटक रहा है तो ठीक है ना, उसको निकाल बाहर करो. भैया, आंख में अगर कोई कचरा गिर जाता है और उससे आपका विजन डिस्टरप्ट होता है, अगर उससे आपका विजन गड़बड़ होता है, आपकी आंख में सूजन आती है, पानी आता है, तो व्हाट डू यू डू? उस कचरे को सहेज के संभाल के रखते हो? ना ना, बड़ी मुश्किल से आया है ये कचरा मेरे आंख में, मैं तो इसको सहेज के रखूंगा. अरे तुरंत जाते हो, एक कपड़ा उठाते हो, उस आंख में से उस कचरे को निकालते हो, पानी छटकते हो एंड योर आईज आर गुड एनफ. तो जब अपनी आंख में पड़े हुए कचरे के साथ आप ये कर सकते हो, तो व्हाई नॉट विद दोस थॉट्स व्हिच आर जस्ट लाइक दैट आंख का कचरा. वो थॉट जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, वो थॉट जो आपको परेशान कर रहा है, वो थॉट जो आपको अटका रहा है, वो थॉट जो आपको रोक रहा है, वो फीलिंग, थॉट मीन्स एनी इमोशन, एनी फीलिंग, तो उसको भी बिल्कुल उस आंख के कचरे की तरह निकालो, बाहर फेंको. सॉरी, अभी तेरी कोई जगह नहीं है, आई डोंट नीड यू, मे यू प्लीज लीव. बस इतना सा ही करना है. लेकिन उससे पहले उससे रूबरू होना पड़ेगा ना भाई. आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स की फाइल्स आती है, यू डोंट एक्सेप्ट ईच एंड एवरी फाइल, यू नो. भाई, इसके साथ मैं काम कर सकूंगा, इसके साथ नहीं कर सकूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार देखना पड़ता है ना उसको. उससे एटलीस्ट नो कहने के लिए ही यू हैव टू अटेंड हिज कॉल और यू हैव टू सेंड अ मैसेज, यू हैव टू से समथिंग. अदरवाइज वो क्या होगा, वो आपके कॉल लॉग में पड़ा रहेगा, वो आपके मैसेज बॉक्स में पड़ा रहेगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, ऐसे जितने भी ऐसे थॉट्स हैं जो कहीं पर भी आपको संकुचित कर रहे हैं, जो कहीं आपको रोक रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकते, वो कुछ भी हो सकते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकते हैं. वो आपके खुद के प्रति एक्सपेक्टेशंस हो सकती है,
वो आपके परिवारजन के किसी के प्रति एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मैं तो उससे इतना करता हूँ, वो मेरे से क्यों नहीं करता, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज। वो आपके क्लाइंट्स के साथ आपके बिहेवियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। मैं उसको कहीं अभी बैठकर डिफाइन और क्लासिफाई नहीं कर रही हूँ। उससे क्या होगा, अगर मैं क्लासिफाई करने लगी, डिफाइन करने लगी, फिर जब आप मी टाइम में भी बैठोगे ना, तो आपको मेरी बातें याद आएंगी। आप उसके साथ डील भी वैसे ही करोगे जैसे मैं बोल रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। इट इज एन एक्सक्लूसिव मीटिंग, exclusive, unique you and unique your thoughts. Yes, those thoughts are unique as they are just taking place in your mind. They haven't seen the world yet, they haven't met the world yet. So उन thoughts के साथ one to one deal करो. Don't be afraid, just face them, meet them, greet them, and if you need them, okay, fine, welcome them. And if you don't be frustrated, don't be possessive enough for your thoughts. Just say thank you, I don't need your services right now, please leave. बोल कर का, हाँ, this may sound weird to many people, पर ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। यस, करके देखना। और कहीं कुछ परेशानी आए ना, वो बार बार आकर आपको परेशान करें, एनी टाइम यू कैन गिव मी अ मैसेज, यू कैन कोऑर्डिनेट विद दीप्ति जी, शी विल गिव यू माय नंबर एंड यू कैन मैसेज मी। और ये एक पूरा प्रोसेस है, बट मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ। मी टाइम, उस मी टाइम में अपने सारे अनवांटेड थॉट्स को देखिए, अपने सारे उन थॉट्स को देखिए जो अचानक एक, वो कहते हैं ना, ओस की बूंद की तरह आए, लेकिन आपने उनको देखा ही नहीं, आपने उनको देखा ही नहीं, उससे पहले ही वो दे गॉट विदर्ड अवे, वो चले गए, वो बुझ गए। वो थॉट्स जो बिल्कुल समय के ऐसे आयाम में आपके सामने आए थे, जिस वक्त आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिस वक्त आपके भीतर कहीं कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस नहीं थे, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं थी, और वो एक थॉट ऐसे ही आया था, उस थॉट को एक बार फिर थॉट दीजिए, उस भाव को, उस इंटेंशन को एक बार फिर थॉट दीजिए। मे बी दैट underlines your progress. Yes, it can be a step, it can be a way, it can be a pathway towards your progress. क्योंकि जो भी ऐसे थॉट्स आते हैं, जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ द वर्ल्ड थॉट आया, वो उस क्षण में आता है जब आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, आप प्रेजेंट में प्रेजेंट होते हो, ना आपके भीतर कोई पास्ट के एक्सपीरियंसेस है, ना आपके भीतर फ्यूचर की कोई चीजें हैं। उस क्षणों में जब आप शायद कुछ क्षणों के लिए प्रेजेंट में प्रेजेंट हुए थे, तब वो थॉट आया होगा। राइट इट डाउन इमीडिएटली, डोंट मिस दैट थॉट। इट मे साउंड वियर्ड एट दैट टाइम, पर बाद में कभी मौका मिलेगा तो वो थॉट आपके लिए एक की लाइन होगा, एक की वर्ड होगा फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर डेवलपमेंट। तो ये तो बात हुई इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप की। नाउ वी कम टू ऑल डिफरेंट रिलेशनशिप। सबसे पहले हम अपने अंदर मजबूत हुए, और अपने अंदर मजबूत कैसे हुए कि हमने अपने अनवांटेड थॉट्स को बड़े प्रेम से बाहर का रास्ता दिखाया, और कुछ ऐसे थॉट्स जो हमारे डेवलपमेंट, हमारे प्रोग्रेस, हमारे आने वाली जिंदगी के लिए हैं, उनको हमने बिल्कुल अपने सेफ्टी लॉकर में, या कहीं हमारे पाथवे टू सक्सेस में एक माइलस्टोन की तरह उसे सजाया, उसे रखा, और अपनी सारी पोटेंशियल को ब्लॉसम करने के लिए इस सारी सृष्टि का धन्यवाद देते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें, आज का ये पूरा ही सेशन इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप पर हो सकता है, बट आई नो आई हैव टू टच मेनी टॉपिक्स, सो whoever wants to know more, we can have a separate workshop on that also. Now coming to the next step, कि जब हम अपने अंदर में पूरी तरह से मैनेज्ड हो गए हैं, हमें पता है कि हमारी शॉर्टकमिंग्स क्या है, हमें पता है कि हमारी प्लस पॉइंट्स क्या है, हमें पता है कि हमारे व्हेन डू वी लूज आवर एंगर, क्योंकि हम मी टाइम में अपने आप को पूरा देख चुके हैं,
कि हमें पता है कि वी आर शॉर्ट टेम्पर्ड, हमें पता है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, आई एम इम्पल्सिव, आई एम एंग्शियस, समटाइम्स आई जस्ट बिहेव इन सच अ मैनर जो मैंने कभी सोचा भी नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स हम अपने बारे में पूरी तरह जानते हैं। जब जानते हैं तो अब हम खुद को मैनेज कर सकते हैं, है ना। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम मैनेज कहाँ से करें। बट व्हेन वी नो दैट वी हैव ऑल दीज थिंग्स इन आवर किटी, वी कैन मैनेज नाइसली। वो बताने की मुझे जरूरत नहीं, बिकॉज यू ऑल आर वेरी नाइस प्रोफेशनल्स, यू हैव अचीव्ड ग्रेट माइलस्टोन्स इन योर करियर, सो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट कि उसको मैनेज कैसे करें। पर मैनेज करना है ये समझ आना जरूरी है, फिर तो आप मैनेज कर ही लोगे। आई हैव फुल फेथ इन। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, अब रिलेशनशिप हमारे कोर सर्कल के साथ। अब इस कोर सर्कल में कौन कौन आता है? कोर सर्कल में हम उन लोगों को जगह कम देते हैं जिनके साथ हम 24 घंटे गुजारते हैं। जैसे कि आपकी कंपनी में या आपके ऑफिस में एक पीएन काम करता है ना, एक सर्वेंट काम करता है जो साफ सफाई देखता है। 24 घंटे वो वहां रहता है, या चलो 24 नहीं, 18 घंटे वो वहां अपनी सीट पर आपके कैबिन के बाहर टेबल लगा के बैठा है या चेयर पे बैठा है। आप 18 घंटे उसके साथ गुजार रहे हो, बट इज ही द कोर मेंबर? Is he in a core relationship with you? No. Core relationship का मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जिनको चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन यहाँ प्रेजेंट है, जो आपका प्राइमरी सर्कल है, यहाँ प्रेजेंट है। मैं एक बहुत प्यारी बात आपको बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, आई सपोज इन 2010 और 12 की बात है। I suppose that was my last play. I was doing a play और उस प्ले का नाम था इस कमबख्त साठे का क्या करें। मैं 2 ही मिनट में उसका पूरा आपको वो बताती हूँ। उस पूरे प्ले में एक कपल है, हस्बैंड वाइफ। जो हस्बैंड है वो साठे नहीं है। वो जो हस्बैंड है ही इज अ एड फिल्म मेकर एंड शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता है, और वाइफ जो है वो किसी कॉलेज में पढ़ाती है, शी इज अ रीडर। एंड दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छा खासा कपल है। एंड जो वाइफ है वो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है, वो थोड़ी सेंसिटिव है, इमोशनल है। और ये हस्बैंड जिस फ्रेटर्निटी में काम करता है, उस फ्रेटर्निटी में एक और पर्सन है जिसका नाम है साठे। अब उसने साठे को कोई अवार्ड मिल गया तो ये बंदा बौखला जाएगा। हमारे काम को तो कोई पूछता ही नहीं है, जब देखो तब उसी के काम को लोग पूछते रहते हैं, अरे ऐसा क्या था उस फिल्म में जो इसको अवार्ड मिल गया। अगर किसी उसने कोई ऐसी फिल्म बनाई या उसने ऐसा कोई एड बनाया जो पब्लिकली साठे ने कह दिया कि दैट वाज अ वेरी फाइन एड, आई लव हिज क्रिएटिविटी, अब उस बंदे को तो अवार्ड से ज्यादा मिल गया, वो इतना नाच रहा है, वाह, कुछ भी कहो, साठे ने मेरे बारे में ये बात। अब पूरे प्ले में 1.5 घंटे के प्ले में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर जस्ट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग अबाउट साठे। उनकी पूरी बातचीत, उस हस्बैंड का खुश होना, उदास होना, एंग्शियस होना, एग्रेसिव होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, इरिटेट होना, ऑल डिपेंड्स ऑन साठे। एंड साठे इज नोवेयर, साठे इज नोवेयर इन द सीन, लेकिन वो हर समय मौजूद है। साठे फिजिकली कहीं आता ही नहीं है, पूरे 1.5 घंटे के प्ले में साठे कहीं स्टेज पर नहीं आता, पर पूरे समय हर सीन में, हर डायलॉग में ऐसा कुछ नहीं जहां साठे मौजूद। और उस प्ले का नाम इस कमबख्त साठे का क्या। जरा जब तक मैं बोल रही हूँ चेक करना आप सबकी लाइफ में कितने सारे साठे हैं। हाँ, मुझे किसी के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वरना अभी सब ना यूं खिसिया के हंस रहे होंगे, है ना, यूं थोड़े थोड़े ऐसे, कोई साइड में, कोई इधर देखकर, कोई उधर देखकर, कोई किसी को कोहनी मार रहा होगा। यस, वी हैव अ लिस्ट ऑफ साठेज इन आवर लाइफ।
हम हर समय ऐसे लोगों के बारे में बात करते रहते हैं, पूरे समय हमारा फोकस उन लोगों पर सेंटर्ड रहता है जिनको एक्चुअली में हमसे कोई मतलब ही नहीं। आप कोई सामान, फॉर एग्जाम्पल आपका पड़ोसी से यू आर वेरी मच लाइक वो आपके जिंदगी का साथ है। अब आप गाड़ी भी लाओगे, देखना आज उस पड़ोसी का चेहरा उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ मैंने बड़ी गाड़ी ली। या घर में ही आपके बड़ी मम्मी या आपके बड़े पापा या आपका कजन या एनीवन, ये सारे आपकी जिंदगी के साथ हैं। देखा, मैं भी रिलेशनशिप पर, कोर रिलेशनशिप की बात करते हुए आपके पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, आपके लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, आपके गुरु और टीचर की बात नहीं कर रही हूँ। व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? बट बी ट्रू, टेल मी वेदर आई एम राइट और नॉट। आप उन अनजाने लोगों को अपनी जिंदगी में इतना महत्व दे रहे हो कि जो एक्चुअली मौजूद है आपकी लाइफ में, यू आर जस्ट ब्लाइंड फोल्डेड फ्रॉम देम। आपको अपने पार्टनर की या आपके सो कॉल्ड क्लाइंट की इतनी पड़ी है, 24 घंटे आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि जो माँ बाप आपके आसपास है, जो बच्चे आपके आसपास है, जो वाइफ आपके आसपास है, वो जो एम्प्लॉय आपका जो आपके साथ काम कर रहा है 24 घंटे, यस सर, जी सर, आप उन सबको नजरअंदाज करते हैं। एम आई राइट और नॉट? काश कि मैं आप सबके यस और नोज देख पाती या मैं कुछ सुन पाती। वेबिनार्स का या ऑनलाइन मीटिंग्स का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है for people like me, that I can't communicate with you people. I can't see your eyes, I can't see your faces, and but still let's assume some things and move ahead. तो ये जो लोग हैं, प्लीज आज इतना सा होमवर्क, आई एम वेरी मीन्स जैसा दीप्ति जी ने बताया ना, आई वाज अ लेक्चरर ऑल माय लाइफ, सो आई लव टू गिव होमवर्क्स। First homework, me time. Remember, first homework was me time. And second homework is do mark all the sates of your life. That means जरा देखो कि आपके माइंड में, आपकी बातचीत में ऐसे कितने लोग इफेक्ट करते हैं जो फिजिकली, मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो फिजिकली उतना एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे डू मैटर इन योर लाइफ। अब प्रश्न उठता है कि क्यों मैटर करते हैं? तो सीधी सी बात है, दे मैटर इन योर लाइफ बिकॉज आपका ईगो हर्ट होता है। यस, वो बार बार आपके ईगो को ट्रिगर करते हैं, वो बार बार आपको इंस्टिगेट करते हैं, नॉट फिजिकली, अगेन वो आप ही के माइंड का एक हिस्सा है, उनकी एक पिक्चर आपने बना रखी है तो आपको इंस्टिगेट करता है, और वही आपके लिए आपके डिप्रेशन का, आपके सो कॉल्ड इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का कारण बन जाता है। सो बीवेयर ऑफ दीज साठे। ये जो साठे है ना, मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास एक उसका एग्जाम्पल था, इसलिए ये जो साठे है ना, ये आपके लाइफ का सुख चैन हराम करते हैं। ये आपके सोच का, यहाँ तक कि आपको एक कुएं का मेंढक बना देते हैं। आप कहीं बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते हो। आपकी प्रोग्रेस, आपके काम करने के वर्किंग स्टाइल्स, आपके थॉट प्रोसेसेस, आपके इनोवेशन आइडियाज सब धरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि समवेयर और द अदर यू आर इमिटेटिंग दैट साथ। Somewhere or the other your energy is so much diverted towards them that you just move all. अच्छा, ये साथी केवल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एग्जिस्ट करते हो ऐसा नहीं है। आप देखो ये जितनी फीमेल्स हैं वो कोई भी साड़ी पहनेगी, उनके दिमाग में वो बंदा या बंदी आ जाएगी जो उनका साथे है कि मैं उनके जैसी लग रही हूँ। Remember, you are not inspired by that person, you are somewhere instigated by that person. और उससे क्या हो रहा है? आपकी ओरिजिनलिटी छिन रही। आप जो हो
वो आप खुद को प्रस्तुति नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू एग्जिबिट योरसेल्फ व्हाट यू एक्चुअली आर। सो प्लीज बी वेयर। देखो ये साठे, इन साठे को आप अपने बच्चों की लाइफ में कैसे प्रवेश करवाते हो। देखा उन अंकल की बेटी को, वो देखे ना, वो डांस भी करती है, वो स्विमिंग भी करती है, वो कैसे कपड़े पहनती है, उसका स्टाइल कैसे, और अनइंटेंशनली आप अपने बच्चे में उसको ज्यादा देखने लगते हो जिस बच्चे से आप अट्रैक्ट हुए। अरे अगर आप किसी बच्चे से अट्रैक्ट हुए हो, या सपोज यू फाइंड अ पर्सन, इवन यू आर मैरिड, इट्स वेरी नॉर्मल, इवन इफ यू आर मैरिड, अगर आप किसी पर्सन को देखते हो विच अट्रैक्ट्स यू एज अ वेरी हैंडसम और अ स्मार्ट पर्सन, तो सिंपल करो ना, सिंपल करो ना, तारीफ कर दो, अप्रिशिएट कर दो, वाओ व्हाट अ पर्सनालिटी, ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वेरी नाइस। बस इसी तरह खिलते फलते रहो, दुआ दो उसको। और जैसे ही आपने बोलकर निकाला, ये अप्रिसिएशन किया, अब आप उसका वो जो छाया है उसको अपने अंदर प्रवेश ही नहीं दो। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अप्रिशिएट करना नहीं सीखते, ना हम खुद सीखते हैं, ना हमारे बच्चों को सिखाते हैं। और अगर हम अप्रिशिएट भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये डर रहता है, अगर मैंने उसकी तारीफ की तो मेरा हस्बैंड बुरा मान जाएगा। हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने किसी फीमेल की तारीफ कर दी तो मेरी वाइफ बुरा मान जाएगी, तुम्हें तो वही सुंदर लगती है, मैं तो लगती ही नहीं हूँ। अरे हाँ, तो क्या हो गया? अगर वाइफ ने ऐसा बोल दिया तो क्या हो गया? आप अपने क्लाइंट्स को इतना पटाते हो, क्या वाइफ को नहीं बोल सकते हो हाँ आज मुझे वो सुंदर लग रही थी, पर तुम तो मुझे रोज ही सुंदर लगती हो। You are beautiful in your terms and she is beautiful in her terms, and it's good to appreciate beauty. Why not accept? Why give reasons? Why give clarifications? और एक बात समझना, प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है। विराट गुरुदेव के दिए गए 10 तथ्यों में से ये एक तथ्य है कि प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है। तीसरी चीज, दूसरी ध्यान आई ना कि अपने लाइफ के साठे को मार्क करो। तीसरी चीज जो मार्क करने योग्य है, wherever you are trying to clarify, to prove yourself, to reason yourself, बाहर रीजनिंग और बाहर क्लैरिफिकेशन देने से पहले अपने आप से पूछ लेना, why am I trying to prove this? मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों ये क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं? और अगर मैं दे रहा हूं, दैट मीन्स मेरे अंदर कहीं तो भी कमी है। अब देखो ना, लोग यूं ही इतने सारे बैठे हैं, एक व्यक्ति अचानक बोलेगा मुझे झूठ से सख्त नफरत है, तो भैया आपने किसी और को कहते हुए सुना क्या कि मुझे झूठ से विशेष प्रेम? किसी को नहीं पसंद है झूठ, लेकिन जो व्यक्ति बार बार अंडरलाइन करके कह रहा है तो समझ लीजिए। एक व्यक्ति अचानक आकर कहेगा भैया कुछ भी हो, मैं तो बिल्कुल सारी बातें साफ साफ कह देता हूँ, बीवेयर, समझ जाना ये बंदा कुछ ना कुछ छुपा रहा है। क्योंकि जो भीतर है, आप जब सांस लेते हो आपको 24 घंटे कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। जरा देखना आप कब अचकचा जाते हो, क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप किसी से छुपाने का प्रयास कर रहे हो, या जो आप नहीं हो भीतर वो आप बाहर कह रहे हो। क्या आपको अपने पति को या बच्चे को या रोजाना अपने माँ बाप को कहना पड़ता है कि देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो? नो, बिकॉज बाय योर जेस्चर्स, बाय योर इमोशंस यू शो दैट यू लव देम, यू शो दैट यू लव देम। लेकिन कहीं बाहर आपको कहना पड़ता है अरे जी बहुत बहुत बधाई हो, वो आप सारी तारीफ के पुलिंदे बांधते। इट्स गुड टू अप्रिशिएट, लेकिन कहीं अगर आप कुछ प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हो, कहीं ना कहीं अंदर कमी है। तो पहले अंदर की उस कमी को जानना, पहचानना सॉरी, और फिर बाहर अपनी कोई बात कहना। क्योंकि जो भी आज तक खुद को प्रूव करने गया उसको संसार ने कभी स्वीकार नहीं किया। मुंह पे बोल देते हैं सब पता है तेरी सच्चाई क्या है, और बाकी आपका काम खुद बोलता है। नाउ वी कम टू वन मोर थिंग जो अक्सर सारे प्रोफेशनल्स में आती है। आई नो आई हैव टू रश बिकॉज आई हैव
limited time, but I just want to do this one topic. I just want to talk about this one topic and then we'll move to the question and answers. एक चीज होती है, अक्सर मैंने सबसे सुना है कि चाहे वो सीए प्रोफेशनल्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे कुछ हो, कि हम किसी को ना नहीं कह सकते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं कि भैया आप क्यों नहीं किसी क्लाइंट को मना कर देते, कि वो लास्ट मोमेंट पे क्यों समय आपको सारा अपना डेटा देता है, या डॉक्टर है उसको कहीं बाहर जाना है और एक बंदा आता है कि डॉक्टर साहब चेक करो, तो डॉक्टर क्यों नहीं मना करता है, या कोई भी और प्रोफेशनल है, या आप अपने घर में भी देख लो कि लेडी हैं, वो अपने माँ सास ससुर को या अपनी ननद को या किसी को भी ना नहीं कह पाती, और ना नहीं कह पाती और अंदर ही अंदर झल्लाती, और भाई आप या तो ना कह दो सॉरी। अब वो डॉक्टर भी उस पेशेंट को अटेंड जरूर करेगा, ना नहीं कहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर झल्लाएगा कि ये लोग समझते क्या है, हम क्या मशीन है, हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, अंदर ही अंदर चालू है चालू है चालू है चालू है चालू है। इवन द सीएज, आप किसी को भी देख लो, इवन घर की बहू है, अरे मम्मी थोड़ी देर पहले नहीं कह सकते थे, उनको पता नहीं था कि आज मुझे बाहर जाना है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, बट स्टिल शी विल। अभी इससे क्या हुआ, दो गलत चीजें। पहली चीज तो ये कि आप जो काम करके दे रहे हो, ऑब्वियसली वो 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका माइंड और स्पीच नदारत है, ओनली यू आर कंप्लीटिंग इट फिजिकली। दैट मीन्स 100 में से ओनली 33% यू आर कंप्लीटिंग, 66% तो आपने क्रॉस लगा दिया है और इट इज कंटामिनेटेड, यू नो। नाउ अब दूसरा क्या गलती हुई, एक तो 33% जब आपने दिया है, वर्क किया है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। अब दूसरा क्या होगा कि आपके अंदर की ये जो इरिटेशन, एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है, दैट वुड क्रिएट पॉइजन इनसाइड यू। वो आपके अंदर इतनी कमियां, इतनी गंदगी अंदर भर देगा जिसको आप बाहर नहीं निकाल पाओगे, एंड धीरे धीरे वो गंदगी जमा होते होते इट वुड बिकम स्टैग्नेंट, और वो इतना बदबू मारने लगेगी कि कहीं ना कहीं इट वुड बर्स्ट लाइक अ वोल्केनो, इट वुड बर्स्ट। दूसरा, वो बर्स्ट करेगी तब करेगी, हो सकता है आप इतने समझदार हो, एक सोशल फेस लेके चल रहे हो कि यू आर अटेंटिव इनफ कि आप उसको बर्स्ट नहीं करोगे, आप मेडिटेशन से या किसी और तरीके से निकाल लोगे। लेकिन जब तक नहीं निकालो तब तक वो पॉइजन आपके अंदर बहकर सड़ांध पैदा करेगा, जो धीरे धीरे दीमक की तरह आपकी वर्किंग कैपेसिटी को, आपके मस्त नेचर को, आपके हंसते मुस्कुराते स्वभाव को, और सबसे बड़ी चीज आपकी स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खाए। आप देखो कुछ लोग आपको मिलते हैं एनी टाइम मस्त, उनको देखकर खिलखिलाने का मन करता है, उनको हंसते देखकर हंसने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट बिजी, दे आर डूइंग वंडर्स, दे आर डूइंग मेनी थिंग्स, लेकिन स्ट्रेस फ्री होकर कर। इसलिए अगर कोई कार्य करने का मन ना हो, ये शायद एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जब कुछ करने का मन ना हो फिर भी हमें करना पड़ता है, तो यहाँ पर जब आपको पता है कि यू कांट से नो, तो दो रास्ते। पहला रास्ता तो ये है कि सबसे फर्स्ट स्टेप ये है, रास्ता नहीं, फर्स्ट स्टेप ये है कि जब आपके सामने कोई ऐसा काम आया जिसे आप ना कहना चाह रहे हो, तो जस्ट फॉर अ वाइल चेक कि क्या ये कार्य अभी इसी समय करना जरूरी है, और अगर मैं इसे मना करता हूं तो इसका क्या इफेक्ट होगा। जस्ट फॉर अ वाइल थिंक अबाउट। सेकंड थिंग व्हाट यू कैन डू इज, सेकंड स्टेप अगेन सॉरी, सेकंड स्टेप इज जस्ट चेक, कहीं ये आपकी सोशल ड्यूटी तो नहीं, सोशल ऑर्डर तो नहीं, कि आप आपकी एक पोस्ट है, जैसे तो अभी आप ऑफिस आवर्स में भी बैठे हो, कई बार काम करने का मन नहीं होता है, तो क्या ना कह दें? ना,
आपका सोशल ऑर्डर क्या कह रहा है, आपकी ड्यूटी क्या कह रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कह रही है, आपका कर्तव्य क्या कह रहा है, आपका दायित्व क्या कह रहा है कि आपको वो कार्य करना चाहिए। तो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो, कोई पसंद नापसंद नहीं, जस्ट डू योर वर्क। आर्मी की तरह अपने माइंड को ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, जस्ट गो अहेड एंड फुलफिल द ड्यूटी। और वो काम करो बिना फ्रस्ट्रेशन के, काम करो और भूल जाओ, काम करो और भूल जाओ। अब ये जो एटीट्यूड है हमारा, आप बोलोगे महाराज साहब कह रहे हो उस समय याद ही नहीं आता है ये सब कुछ करना, वो एकदम सामने से आता है और निकल जाता है, इट इज इम्पल्सिव एंड सो एंड सो। आई एग्री, इट इज इम्पल्सिव। इसके लिए आप अभी जैसे आपको फ्री समय अगर थोड़ा मिल रहा है तो प्लीज स्पेंड सम टाइम, ये सारा काम आपके उस मी टाइम में होगा। जो फर्स्ट होमवर्क आपको याद है ना हमने किया था, फर्स्ट होमवर्क मी टाइम, उसमें याद होगा कि आपको खुद के साथ बार बार ये इंस्ट्रक्शन देना आए कि मैं कितना अनवांटेड काम कर रहा हूँ, अननेसेसरी काम कर रहा हूँ। मैं कई बार लोगों को देखती हूँ कि ऑफिस का काम तो 7 बजे निपट जाता है, 9 बजे तक घर पहुंचते, क्यों? कि बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्योंकि वो बाकी सारे जो दोस्त लोग हैं वो ऐसे ही छेड़ रहे, क्या यार जोरू का गुलाम है क्या, ऐसा घर जाके क्या करेगा, वो क्या करेगा। अब क्या है कि सिर्फ उन ताने और उन मजे जो वो मतलब दे डिडंट मेंट आल्सो, वो सिर्फ मजाक मजाक में कह रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और आपने टाइम पास कर दिया, लेकिन आप भूल गए कि वो हिस्सा किसका था, आपके साथ। सो ये जो चौथा पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप ना कहना सीखें, ना सिर्फ बाहरी लोगों को नहीं, अपने आप को भी, कि कब आपका मन क्या करने का कर रहा है। जस्ट चेक वेदर इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ड्यूटी, वेयर यू नीड टू बी। तो आपको ये असेस करना आए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है। एक स्टोरी छोटे से बच्चे की है। तो उसके माँ बाप दोनों एक अच्छे बड़े बंगलों में रहते थे, और उनके बंगलों के जस्ट एडजॉइनिंग देयर वाज दिस अंकल रेसाइडिंग, एंड ही वाज ऑल अलोन। तो ये जो बच्चा था, इसके माँ बाप जब अपने काम पे जाते थे या जब बिजी होते थे, ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद दिस अंकल। एंड वो देखता था कि जब भी वो अंकल के पास जाता था तो अंकल सारा काम काज छोड़कर उसके साथ बैठते थे, उसके साथ खेलते थे। कभी वो कहता था कि अंकल मुझे ये बॉक्स बनाना है, तो उसे कारपेंट्री सिखाते थे, और ऐसे बहुत सारी चीजें उन अंकल ने सिखाई। ये हुआ एक हिस्सा। आज वो व्यक्ति एक टॉप मोस्ट फर्म का सीईओ है। ही इज मैरिड, ही हैज किड्स, एंड नाउ वो जो बंदा है सीईओ नाउ, ही इज वन ऑफ द लाइक टॉप 10 ऑफ द कंट्री। और वो इतना जल्दी उस पोस्ट पर पहुंचा है कि लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी स्टोरीज बन रही है, सक्सेस स्टोरीज, ही इज ऑन द कवर पेज ऑफ मेनी मैगजीन्स एंड ही इज एंजॉयिंग दैट सक्सेस। अब उसकी बीवी कई बार कहती है कि वी नीड यू, बी हियर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, डू कम विद अस फॉर अ हॉलिडे, बच्चे आपका वेट करें। एंड ही वाज ऑलवेज, मैं किस लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, ये जो तुम ऐशो आराम देख रहे हो ये सब तुम्हें चाहिए, मैं अकेला किस लिए कर रहा हूँ, मैं तो आज भी वो गाड़ी में ही सोता हूँ, वो करता हूँ। एंड ही वाज लाइक ब्लेमिंग एंड मदर फादर तो आखिर तंग आके थक हार के वापस अपने उस पुराने घर में लौट गए, और ये अपने पैसा छापने की मशीन बन चुका। एंड वन डे उसके पेरेंट्स का लेटर आता है। तो एज यूजुअल वो लेटर अपने सेक्रेटरी को देता है कि भाई इसको पढ़ लेना और इसको मेरी तरफ से जवाब टाइप करके भेज देना। यू नो नाउ डेज इट इज सो इजी कि पहले तो क्या कि पेरेंट्स को या किसी को लेटर लिखते थे तो अपनी हैंड राइटिंग पहचान में आती थी। आजकल तो टाइप होता है, तो टाइप में तो पता ही नहीं चलता कि किसने लिखा। तो उसने दिया। सडनली द टाइप मीन्स द टाइपिस्ट केम बैक, क्योंकि उसको लगा था उस बंदे को कि एज यूजुअल ये होगा कि हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम कब आओगे, इस बार दिवाली पे आ जाओ, इस बार होली पे आ जाओ, इस बार जन्मदिन पे आ जाओ, हम बूढ़े हो रहे हैं, वही सारी बातें होगी। एंड आप लोगों को भी कई बार ये बातें सुनने को मिलती होगी और आपको लगता है व्हाट रबिश, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए कोई टाइम। तो उसको भी ऐसा ही लगा। बट वो सेक्रेटरी वापस आई।
Sir, please look at this. It has an important message and only one line in the whole letter. And the line was, वो जो uncle थे, he is no more. He died today morning. So if you can, just attend the funeral. For a blink of second, that person was blank. Uncle चले गए? कैसे? एंड 1 मिनट में उसको वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं याद आ गई कि कैसे सारा काम हुआ था, कैसे अंकल मुझे इतना समय देते थे, जब मैं माँ बाप से गुस्सा होता था तो मुझे मनाते थे, जब मैं वहां खाना नहीं खाता, सारी बातें याद आ गई। ही कैंसल्ड ऑल हिज मीटिंग, ही वेंट देयर, और उन्होंने वो फ्यूनरल अटेंड किया बिकॉज ही वाज वेरी मच अटैच्ड टू अंकल। ही हैड शेयर्ड ऑल हिज like success, all his failures, all his वो छोटे छोटे सीक्रेट्स होते हैं, वो सब कुछ किया था। तो फ्यूनरल हो गया, उनका कोई था नहीं, तो वो गए उस घर में, एक जो वहां पे वर्कर था वो था। अब वो जाके उसने हर एक चीज छू छू कर देखी। ही वाज लाइक रिकलेक्टिंग हिज चाइल्डहुड मेमोरीज। अचानक उसे कुछ याद आया और वो एक पर्टिकुलर कमरे में, एक पर्टिकुलर अलमारी नुमा कुछ था, उसके साइड में एक टेबल हुआ करती थी। उस टेबल पर गया और उसने देखा, वाह, एक वुडन बॉक्स था, बहुत पुराना सा, और उस पे ताला लगा था। वो अंकल उसे सारी चीजें खोलने देते थे, सारी चीजों को हाथ लगाने देते थे, ईच एंड एवरीथिंग वट एवर ही वॉन्टेड, बस इस एक बॉक्स को हाथ नहीं लगाने देते। तो उसने वो बॉक्स उठाया कि अंकल ने मुझे कभी ये हाथ नहीं लगाने दिया। जैसे ही बॉक्स उठाया, उसके नीचे एक एनवलप था उसके नाम का, एंड उसमें एक की थी छोटी सी, उस लॉक की जो उस बॉक्स की थी, और उसमें उसका नाम लिखा हुआ था, फॉर यू माय बिलवड सन, एंड दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। वो सारे लम्हे जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, वो इस बक्से में कैद। ही वॉज अस्टोनिश्ड। उसने वो लॉक खोला और उसने देखा वो छोटी छोटी चीजें, उस एक एक चीज के साथ उसको अपने बचपन की सारी यादें आती गई। आई वोंट एक्सटेंड द स्टोरी फार लॉन्ग बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, पर उसे वो सब चीजें याद आई। और अब उसे समझ में आया, वो अंकल से रोज पूछता था कि व्हाट इज दिस ट्रेजर यू हैव हियर, आप इसमें आपका ट्रेजर है और ये मुझे चाहिए और ये किसके नाम छोड़ के जाओगे, रोज पूछता था। आज समझ में आया, अंकल ट्रेजर्ड माय टाइम। और उस एक क्षण में उसे वो चीज समझ आ गई जो उसकी फैमिली, जो उसके फ्रेंड्स, जो उसकी वाइफ, बच्चे इतने सालों में नहीं समझा। अंकल ने वो एक एक क्षण जो मेरे साथ बिताया, उसे ट्रेजर किया, उसे जिया। एंड व्हाट एम आई डूइंग? ही वेंट बैक टू हिज होम, अपने माँ बाप के पास जाके बैठा, अपनी माँ की गोद में सर रख के बैठा, उनके साथ समय बिताया, ऑफिस कॉल किया, 7 दिन के लिए छुट्टियां, ऑल मीटिंग्स कैंसल्ड, जो नुकसान हुए होता रहे, यू हैंडल इट। वाइफ और बच्चों को कॉल किया, कम राइट नाउ, टिकट्स भेजे, वी आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे। और वो 7 दिन के हॉलीडे को 15 दिन एक्सटेंड किया। एंड उसके बाद ही मेड इट अ पॉइंट, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, ये मेरे काम का समय, ये मेरी फैमिली का और मेरा अपना समय है, मैं इस समय के साथ कोई गुस्ताखी नहीं करती। सो प्लीज ट्रेजर योर टाइम। आई हैड अ क्वेश्चन अ फ्यू डेज बिफोर, और ये आप सबके साथ भी होगा। अगेन आई एम टेकिंग इट एज अ क्वेश्चन। मेरे पास पर्सनल किसी का क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन था, मैं उसको इन शॉर्ट आपको सीधा जवाब की बात करती हूँ कि हम जब ऐसे किसी प्रोफेशन में घुस जाते हैं विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो ऐसा लगता है कि हम खत्म हो गए। तो व्हाट डू वी डू? ऐसे ही एक बंदे का प्रश्न आया था जिसके फादर चाहते थे कि वो उसका पूरा ऑफिस संभाले, इतना लंबा चौड़ा बिजनेस है वो संभाले, बट दैट पर्सन ही वांटेड टू बी अ सिंगर। अब क्या करें? अगर सिंगर बनता है तो पिताजी ने जो पूरी जिंदगी लगाकर ये जो बिजनेस खड़ा किया, लाखों की जायदाद, ये तो यूं ही लोगों के हाथ में चली जाएगी, नौकरी खा पी के पूरा करेंगे। और
मैं अगर सिंगर बनता हूं, नहीं बनता हूं, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो व्हाट शुड आई डू? तो एक बहुत सिंपल सा रास्ता हमने अख्तियार किया, बात हुई हम दोनों की आपस में, और एक बहुत सिंपल सा रास्ता अख्तियार हुआ कि भैया एक काम कर, सोमवार सुबह 7 बजे से लगाकर शुक्रवार, ही हैड 5 days ऑफिस, सो शुक्रवार रात 10 बजे तक तू अपने फादर की कंपनी का करता धरता, नौकर मालिक जो समझे तू सब कुछ। अब उन 5 दिनों में तेरे कोई मतलब नहीं है तेरी सिंगिंग का, तेरे दोस्तों का, तेरी फैमिली का। तू सिर्फ 5 दिन उस काम पर ध्यान दे, उसके सिवाय कुछ नहीं। लेकिन 10 बजे शुक्रवार से लगाकर 7 बजे सोमवार तक you are a singer, you are a friend, you are a husband, you are a whatever you want to be, वहां सिर्फ तू है। हाँ, कोई ऐसी ही इमरजेंसी आ जाए जहां तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता, बाकी वो 2 दिन चाहे कितना भी तेरे को फायदा होता, लेकिन 2 दिन जूते चेंज मत कर। ये 2 दिन सिंगर के जूतों में, 5 दिन बिजनेसमैन के जूतों में। सो इट इज ऑलवेज अप टू यू। यू नो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वक्त की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके लालच। यू वांट दैट इतना सा मोर। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वो आपको हमेशा याद रहेगा जब भी आप ये करोगे ना अपने आप के साथ। आपको पता है घर में वो आपकी मम्मी या वाइफ या जब कभी वो कोल्ड कॉफी बनाती है आपके लिए, एक ग्लास है ना, तो वो ग्लास है, उन्होंने कोल्ड कॉफी डाली, वो पूरा यहाँ तक भर गया ग्लास, वो कॉफी के जार में, मिक्सी के जार में लेकर खड़ी है। आप पूछोगे क्या हुआ? अरे वो एक घूंट बचा है, तू एक घूंट पी ना, मैं एक घूंट और डालती हूँ। आप एक घूंट पीते हो, वो मम्मी एक घूंट डालती है, फिर एक घूंट बच जाता है, क्या हुआ? अरे एक और घूंट बचा हुआ है, तू पी ना, मैं एक और घूंट डालती हूँ। वो ऐसा कर करके एक की जगह आपको 1.5 ग्लास पीना पड़ जाता है। लेकिन वो एक घूंट का लालच आपको नुकसान देगा। Next time, whenever you have such commitments in your family time, in your me time, in your friends time, आप बिल्कुल अपने आप को ये एक घूंट कॉफी वाली बात याद दिलाते। You will never be able to deceive yourself. हम खुद ही के साथ झूठ बोल, ऊपर से हमारा ही लालच है कि नहीं यार ये क्लाइंट चला जाएगा, नहीं ये है ना मेरे नुकसान हो जाएगा। वो इतना सा नुकसान, वो जो एक कप कॉफी है ना, आपको उसका आनंद लेने से रोकता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर running short. There are list and list of questions, so let me take 1 or 2 questions. There are many questions जो बिल्कुल इस रिलेशनशिप से अलग हैं। मैं एक क्वेश्चन इसमें जरूर लेना चाहूंगी, हाउ टू हैंडल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, हाउ टू हैंडल ईगो ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड हाउ टू हैंडल स्टबर्न चाइल्ड। तीनों क्वेश्चंस में एक ही साथ लेना चाहूंगी। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप, मुझे एक बात बताइए, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एनी अदर रिलेशनशिप? बिल्कुल नहीं। जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, जैसे एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड व्हेन पेरेंट्स स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन। ये जहां एक्सपेक्टेशंस आती है वहां प्रॉब्लम है। जैसे बच्चे हैं, अब उनको क्या है कि कंफर्ट्स तो सारे इंडियन पेरेंट्स के, इंडियन चाइल्ड के चाहिए, और कुछ मामलों में लग्जरीज उनको वेस्टर्न चिल्ड्रन की तरह चाहिए, आजादी वेस्टर्न चिल्ड्रन की तरह चाहिए। यानी कि माँ बाप उनके किसी बात में, किसी डिसीजन में दखल ना दे, ये उनको वेस्टर्न चिल्ड्रन की तरह चाहिए। लेकिन इंडियन पेरेंट्स की तरह माँ बाप उनकी फीस भरेंगे ही, उनको गाड़ी लेकर देंगे ही, उनकी सारी लग्जरीज पूरा करेंगे ही, उनको पॉकेट मनी देंगे ही। क्यों नहीं देंगे? आखिर पैदा क्यों किया? यस, यानी जो चीज जहां की अच्छी है आपको वो सब चाहिए। बट पेरेंट्स, when you are in the shoes of parents, please check कि अगर
आपके बच्चे ऐसी डिमांड करें, बिल्कुल उनको दीजिए। अगर वो कहते हैं कि आप हमारा सोशल बुक अकाउंट नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं कर सकते, आप हमारे मैं कहाँ जाता हूँ, किसके साथ आता हूँ, क्या करता हूँ, आप चेक नहीं कर सकते, आप मुझे कितना पैसा देते हो आप चेक नहीं कर सकते, बिल्कुल एक दिन बैठकर टेबल पर बात कर लीजिए। हैव द गट्स टू स्पीक टू योर चिल्ड्रन, टेल देम कि ठीक है, अगर तुम अपने सारे डिसीजंस खुद ही लेना चाहते हो, अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हो, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हो, आज से तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, प्लीज यू कैन लिव योर लाइफ बट एट योर कॉस्ट। तो कमाओ भी तुम, खर्चो भी तुम। तुम्हें अगर अपने पसंद का करियर अपनाना है तो उसकी फीस की व्यवस्था भी तुम खुद कर लो। तुम्हें अगर अपने पसंद का लाइफ पार्टनर चाहिए तो ठीक है भैया, उसका खर्चा भी तुम कर लो। यस, अगर तुम्हें इतना सब कुछ चाहिए तो ठीक है ना, बट नॉट एट आवर कॉस्ट। प्लीज डोंट बिकम हेल्पलेस एंड अपने बच्चों के सामने गिड़गिड़ाओ मत। यस, गिव देम स्पेस, रिस्पेक्ट, डोंट बी स्टबर्न। एंड एज पेरेंट्स ऑल्सो, मैंने अभी अगर बच्चों की बात बोली है, प्लीज आई एम कमिंग टू पेरेंट्स ऑल्सो, प्लीज बच्चों को आपने पैदा किया और उनको पढ़ा लिखाया, उन पर इन्वेस्टमेंट किया है, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर a complete personality in themselves। आप सभी जैन परिवारों से हो, कर्म सिद्धांत जानते हो और ये जानते हो कि आप पुराने जन्म के कर्म लेकर आते हो, तो आप समझिए कि एक बच्चा, एक जीवात्मा जब आपके घर में पैदा हुई है तो वो कोई ना कोई आपके पुराने ऋणानुबंध है, और वो जब पैदा हुआ है जीवात्मा तो अपने सारे पुराने कर्मों को साथ लेकर पैदा हुआ है। उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी संज्ञाएं हैं जिसमें वो जीवन जी रहा है। तो उसको किसी और की तरफ बनाने का ख्याल छोड़ दीजिए, या ये अहम आपके भीतर कि मैं इसकी जिंदगी बनाऊंगा, तो माफ कीजिए, ये सिर्फ आपका अहम है। आप किसी बच्चे की जिंदगी बना नहीं सकते। हम अक्सर मदर्स को सुनते हैं, वो क्या है महाराज साहब, मैं इस बच्चे को बड़ा कर दूं फिर मेरा काम हो गए। बड़ा करना है तो एक ही दिन में खींच खींच के बड़ा कर दो ना। कर सकते हो क्या? 1 इंच भी बढ़ा सकते हो? नहीं कर सकते। इट विल हैपन ऑन इट्स ओन टाइम। आपकी भूमिका सिर्फ और सिर्फ एक माली की तरह है। तो द चाइल्ड इज स्टबर्न और नॉट, द थिंग इज यू आर बीइंग स्टबर्न, इसीलिए आपको बच्चा स्टबर्न दिखाई दे रहा है। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द चाइल्ड वांट्स। पहले एक बार बच्चे को सुनो पूरी तरह से, जब आप उसको सुनोगे तब आप अपनी बात कह पाओ। एंड व्हेन यू सी कि आपकी भूमिका बिल्कुल एक माली की तरह, एक बीज में योग्यता है कि वो अपनी ही तरह से खिले। आप कितना भी मर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर लो, सेब का बीज डाला और रोज बोलो पानी दो, उसको खाद दो और बोलो चीकू का पेड़, चीकू का पेड़, चीकू का पेड़, तो क्या वो चीकू देने लगेगा? नहीं देगा। सेब का पेड़ सेब ही देगा, चीकू का पेड़ चीकू ही देगा। उस बीज में वो योग्यता है। आपकी भूमिका क्या है कि आप ये जानो कि हाउ कैन यू नरिश एन एप्पल सीड, हाउ कैन यू नरिश अ चीकू सीड, हाउ कैन यू नरिश अ रोज सीड, रोज सैपलिंग। आपकी भूमिका इतनी है कि आप देखो कि इसको कितना धूप पानी की जरूरत है, कितना खाद की जरूरत है, इट नीड्स कटिंग डाउन, इट नीड्स केयर, इट नीड्स अ फेंसिंग और व्हाट, जो भी नेसेसरी है। आपकी भूमिका सिर्फ उतनी। तो ये प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम सामने वाले को नहीं देख पाते हैं। एज वाइस एडमिरल सेड इन द बिगिनिंग, आप जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू करो, और जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो, डू यू वांट टू बी इंटरफेयर? क्या आपको अपने डिसीजन में इंटरफेरेंस पसंद है? क्या आपको पुलिंग पसंद है? क्या आपको नैगिंग पसंद है? क्या आपको डीमोटिवेटिंग शब्द पसंद है? क्या आपको डिप्रेसिंग शब्द पसंद है? क्या आपको पसंद है कि कोई आपसे जेलस हो? क्या आपको पसंद है कि कोई आप पर बॉसी नेचर की तरह ट्रीट करे? इफ नो, प्लीज डोंट डू दिस टू एनीबडी, अगर वो आपका बच्चा ही क्यों नहीं है। फिर सवाल इसी से रिलेटेड है कि हमें कैसे पता चले कि अगर हम बच्चों को, जैसे अक्सर माएँ बोलती है, अगर मैं ना पढ़ाऊं तो ये पढ़े ही नहीं, अगर मैं ना खिलाऊं तो ये खाए ही नहीं।
ये 4-4 दिन भूखा रह जाएगा महाराज जी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी पसंद नापसंद और अपने दिमाग से उस बच्चे को खिला रहे हो। आपने कभी उस बच्चे की प्राकृतिक चीज समझी नहीं है कि उसको भूख भी लगी है। बच्चे की क्या, घर के किसी सदस्य की नहीं। आप देखो, हम लोग घड़ी से खाना खाते हैं, और घड़ी से ही नहीं, क्वांटिटी से, कि मुझे 3 रोटी खानी है, मुझे 1 ग्लास दूध पीना है, मुझे इतना बिस्किट खाना है, मुझे इतना फ्रूट खाना है। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर को इसकी जरूरत है। वो किसने बताया? किसी तीसरे व्यक्ति ने। आपको खुद का पता ही नहीं। जरा चेक करना कि लास्ट मुझे एक्चुअली कब इतनी जोर से भूख लगी थी। आपको याद ही नहीं आएगा कि आपको कब भूख लगी थी। इट इज ट्रू, आपको याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप रोज बिना भूख से पहले ही खा लेते हो। इच्छा होना खाने की अलग बात है, भूख लगना अलग बात, प्यास लगना अलग बात है, इच्छा होना एक अलग बात। प्यास लगा तो पानी गर्म हो, ठंडा हो, खारा हो, कड़वा हो, कैसा भी हो, यू विल ड्रिंक इट। लेकिन अगर इच्छा हुई है तो यू वुड वांट, अरे यार पानी नहीं, ऐसा करो कैरी पानी ला दो, वरना गुलाब का शरबत ला दो। ये इच्छा है, ये प्यास है। I suppose there is a whole list of questions. I don't know, let the organizers speak, that do we have furthermore time, or should we just wind off? I know I have left behind many points, many questions, पर ये जो 4 points जो normally I suppose शायद ही किसी वर्कशॉप में मिलते हैं, वो हम बंदी बंदी की बातें बहुत सुनते हैं, लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स है जिसको हम बड़ी क्लेवरली आंखें मूंद कर बाईपास कर जाते हैं। लेकिन आज जरूरी है कि हम इन सब में अपना चेहरा देखें। तो ये होमवर्क जरूर कीजिएगा। एंड यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन जस्ट put on my Facebook, or you can just put on my WhatsApp. Just coordinate with Dipti ji. Thank you so much, Virag bhai, Abhishek ji and Amrit ji, that आज आपके कारण हम इतने सारे नए लोगों से मिले, नए लोगों से जुड़े। Do get connected with us. Charam Mangal is a platform. I know many of you must have been connected to Charam Mangal. और 2016 में वाशी में गुरुवरिया श्री जी का जब चातुर्मास रहा, तो सीए फेडरेशन का एक वर्कशॉप हुआ था गुरुवरिया श्री जी के साथ। एंड उसके बाद से हम शायद बाफना जी के सानिध्य में ही हुआ था। जी बाफना जी, यस। एंड उसके बाद शायद उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, सो यू वुड हैव सीन मी इन अ डिफरेंट मैनर। एंड बहुत अच्छा लगा आज सुन के। तो चरम मंगल से आप सब कनेक्ट हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, वी नाउ हैव अ न्यू प्लेटफॉर्म, विराट यूथ चरम मंगल, where youngsters from 12 years to 35 years are a member of this, and they are organizing Virat Talks. And it was a pleasure that the episode 1, first day, we had Vice Admiral DSP Verma, and personality, young at heart, and he inspired. Actually, Virat Talks is a platform where we are seeking forward to invite such personalities who have achieved uh, समथिंग इन देयर लाइफ। देखिए, अचीव हम सब अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन कोई ऐसा जिंदगी का मकसद जहां उन्होंने समाज को कुछ दिया, इस राष्ट्र को कुछ दिया, ऐसे कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के साथ विराट टॉक्स के विराट यूथ सभी से कनेक्ट होते हैं। सो आई इनवाइट यू ऑल to get connected to Charam Mangal on YouTube, Facebook, any platform you can, social media, Instagram, Udemy. So there are many platforms. We have many courses. We have many all sorts customized है हर किसी एज ग्रुप के लिए। तो जिसको जैसे हो आप जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहां गुरुवरिया श्री जी के रोजाना सुबह 5 मिनट के ऑडियोज मिलते हैं। YouTube पर डेली अभी वो लाइव आ रहे हैं सुबह 10:30 बजे से। एंड देयर आर अबाउट मोर देन 1000, I suppose more than 1400 pravachans on YouTube, and you can visit Sadhika Pragba's Facebook and Instagram also. And Virat Talks पर आप हमेशा as an audience and as a speaker, maybe some of you can come there also. The team will coordinate with you. So do connect us on Virat Talks also. Thank you for again inviting us, and over to the organizers. Jai Ho. Jai Ho Maharaj ji, thank you so much.
मैं कहना चाहूंगा कि करीब 450 लाभार्थी रहे ये पूरे सेशन के। वाओ, ग्रेट नंबर, थैंक यू। हम यहाँ पे शांतिलाल कोचर जो हमारे ऑल इंडिया जेसीएफ के प्रेसिडेंट है, उनका रिकॉग्निशन कर रहे हैं। हमारे टीसी बाफना जी जो जेसीएफ नवी मुंबई के प्रेसिडेंट है, उनका रिकॉग्निशन कर रहे हैं। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नाउ अमृत पुरवाल जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ जेसीएफ, टू गिव अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू महाराज जी। राधिका जी के चरणों में शत शत नमन वंदन। आभार प्रकट के लिए मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगा। जीवन को चलते रहना है, जीवन को चलते रहना है, लौ इसकी झिलमिल जलती है, लौ इसकी झिलमिल जलती है। जीवन के हर चौराहे पर, जीवन के हर चौराहे पर बस कमी प्रेम की खलती है, बस कमी प्रेम की खलती है। जीवन की कठिन सी राहों पर, जीवन की कठिन सी राहों पर आशीष आपका चाहेंगे, आशीष आपका चाहेंगे। जो राह दिखाई है आपने, जो राह दिखाई है आपने, हम सदा दिल में बसाएंगे, हम सदा दिल में बसाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन, जैन एडवोकेट फेडरेशन और जैन डॉक्टर्स फेडरेशन सभी प्रोफेशनल्स की तरफ से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा। आपने अपना अमूल्य समय इस ऐसे समय में हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे, उसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। हम सभी आभार प्रकट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स, खास करके हमारे विराट भाई, अभिषेक भाई, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके साथ हमारा समन्वय कराया। दीप्ति बहन जो है, इन्होंने इनिशिएटिव लेके बिल्कुल हमें इंट्रोड्यूस कराया और प्रोत्साहित किया कि आपका ये प्रवचन सुनने जैसा है। इस कठिन समय में हमारे सभी परिवारों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी लाभान्वित करने वाली एक्टिविटी है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स, वाइस एडमिरल डीएसपी वर्मा जी, हमारे एपेक्स प्रेसिडेंट शांतिलाल जी कोचर, हमारे सीनियर मेंबर श्री टीसी बाफना जी, डब्ल्यूआरसी की इमीडिएट पास्ट चेयरपर्सन प्रीतिबेन सावला, जयेश भाई काला जो जियो डायरेक्टर और डब्ल्यूआरसी के काउंसिल मेंबर है, उन सभी का जिन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस सेमिनार वेबिनार में आज शामिल हुए। इस शब्दों के साथ मैं सभी ऑडियंस का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इस वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमको साथ दिया। फ्रेंड्स, ये वेबिनार का लाइव रिकॉर्डिंग YouTube चैनल पे प्रसारित किया जाएगा, सो शीघ्र ही आपके साथ उस चैनल की डिटेल शेयर की जाएगी। एक मिनट में, धन्यवाद। I just want to take a minute. Thank you. मैंने शायद शुरुआत में प्रीति जी के नाम की जगह राजवी जी बोला था, so sorry प्रीति जी, I just missed the name. And thank you everyone of you from the organizers team कि आपने इतने प्यार से सुना, and thank you all the audience जो 1.5 घंटे तक इतना पेशेंस के साथ आपने सुना। I just want to suggest one thing, अगर अभी इस सब्जेक्ट पर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो, you can note down my phone number and send me the questions. I'll try and send if we have previous pravachan links of Maharaji, we'll send that, or I'll try and send audios. क्योंकि ये एक चीज ऐसी है, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये एक चीज ऐसी है कि जब आप भीतर से अटके हुए होते हो, you can't give 100%. तो ये छोटी मोटी चीजें निकाल ली जाए ताकि you can flourish in your life. Thank you. जय हो। Yes, बाप। आपसे अनुरोध है, भविष्य में भी जरूरत पड़े हम आपका संपर्क करेंगे वेबिनार के लिए। जरूर। महाराज साहब को सादा चरण वंदन। मैं महाराज साहब का और वैभवश्री महाराज साहब का बहुत बहुत चरण वंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जेसीएफ जो बॉम्बे है, नई बॉम्बे का जो है, उसकी एक्चुअली आधारशिला वैभवश्री जी महाराज साहब के यहीं से राहत से रखी हुई है। और उसी समय हम अभिषेक भी था और हम भी थे, और उनके पहले प्रोग्राम से शुरू हुई थी, और शायद आप उसमें दीक्षा आपकी गुजरात भवन में बाद में हुई थी, मेवाड़ भवन में। और उसके पहले आपका प्रोग्राम मैंने वर्धमान जैन मंच बॉम्बे में अटेंड किया था, एंड दैट प्रोग्राम वाज वेरी नाइस, वेरी इंप्रेसिव फ्रॉम योर ऑल प्रवचन एंड
नाउ दिस साक्षात आपसे प्रवचन सुनने का मौका मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। वैभवश्री महाराज साहब के भी बहुत आभारी है। चरण वंदन हमारी तरफ से कहिएगा और सब दर्शकों का भी हम बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और जब भी आपकी फेडरेशन, आपका ये मंच हमें बुलाना चाहे, ऑलवेज अवेलेबल। एंड एक और चीज लास्ट में, मुझे फिर चीजें लास्ट में याद आती है। गुरुजी की एक किताब है सफलता का एकमात्र सूत्र प्रतिक्रमण। दैट बुक इज अमेजिंग। जो मैंने आज मी टाइम की बात की, तो आप लोग अपने मी टाइम को कैसे बेस्ट आउटपुट ले सकते हैं, यू कैन whenever the lockdown opens you can like book it from Amazon, and उसका पूरा ऑडियो फॉर्म भी है हमारे पास। तो आप उस बुक को सुनते हुए आप उसका ऑडियो हमसे ले सकते हैं, गूगल ड्राइव पर अवेलेबल है। दैट विल explore your inner self. So thank you. Can I do the prayers last? Thank you prayer. और anybody anything from your side? रिमार्क्स करेंगे, उसके बाद आप प्रवचन फरमाइएगा। साधिका जी को वंदन, डिग्नेटरीज ऑन डायस और ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन। So today's program was really awesome, and our members are very happy. Means I am able to see in the comment box they have mentioned, they have appreciated today's webinar. So friends, tomorrow we are having one yoga program powered by Isha Foundation, founded by Sadhguru. So I request all the members to please join with your family, because that is also free for all the members as well as your family members. So even you have not done yoga before that, you can join and start doing yoga in your regular day-to-day life. So I request all the members to please join that. With these remarks, we can conclude today's webinar. Thank you everyone. Thank you everyone. महाराज जी आप फरमाइए। मंगलाचरण फरमाइए। लास्ट में ओके। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तम, हम्मम मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तुम, धम्मो लोगुत्तमो। चतारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धि शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम, हम्मम शरणम पवज्जामि। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो जय हो जय हो, सबका कल्याण हो। थैंक यू। जय हो जय हो जय हो जय हो।